When we talk about data in biological domains, there are basically two things. Number one is sequence itself, and then sequence is basically composed of individual bases. When we want to present this biological data in the form of high level languages, such as particularly in this module we will look at Java, how these sequences and symbols are basically presented by Java. So information in sequences and bases is represented by symbols, alphabets and sequences on Java programming language. Now what are these symbols basically and how they are presented by BioJava? So when we talk about symbols are basically bases in DNA, RNA or protein structure module, what will happen? We say that DNA residue, suppose named A, it would be basically an object itself. When we talk about some other language such as BioPer, in that BioPer language, this DNA residue A, it is not an object, it is a string. You should understand that there is a clear difference between string and object data type. String basically is something which can be assigned easily to some other information. On the other hand, object is basically a larger thing which cannot be assigned or equal to some other information. So which is also shown here as well. For example, a object is part of sequence, not the sequence itself. यानी कि जो sequence होता है उसका सिर्फ part होगा a, it would not be complete sequence. Similarly, A from DNA is not equal to A from RNA. Similarly, protein structures का जो A है, that would be different from DNA and RNA protein or DNA and RNA A, या जो उसकी residue है. Now this residue basically, which is part of DNA, RNA or protein structure is called symbol in BioJava. Now these symbols are basically canonical. Canonical means that, for example, if we say that DNA tools.a is equal to DNA tools.a, यानी कि जो objects हैं basically they would be similar in particularly for DNA tools case. So what will happen? In that case there will be only one instance, one object only. So they will not generate two objects, only one object will be generated. Similarly, if we look in the last thing, protein tools.a is not equal to DNA tools.a. अच्छा, अब ये क्या है कि जब strings की हम बात करते हैं तो then we use the function which is written here as DNA tools.a.equals to. On the other hand, for objects we can use directly is equal to operator with double equal operator, which is shown in this slide also. Alphabets now. Alphabets are basically combination of some symbols. So alphabets can be defined at two levels. They can be infinite. Infinite means that we do not know exact number of symbols in that alphabet, such as we define integer alphabet or double alphabet or string alphabet. On the other hand, if we know what are the exact number or finite number of symbols in the sequence, then we say that these symbols or these alphabets are basically finite. So there are two interfaces, infinite alphabets or finite alphabets. So if we talk about these alphabet example, which is in this particular case, these are basically finite alphabets. So what will what they will have? So we have boolean. Boolean का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, boolean contains symbol s. इससे मुराद ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो हमारा सीक्वेंस है उसमें कोई पर्टिकुलर सिंबल मौजूद है या नहीं. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव ACTG एंड इफ आई से boolean दिस सीक्वेंस 1 कंटेन्स C, सो इस केस में boolean का रिजल्ट यस आएगा कि C उसमें मौजूद है. एंड इट कैन बी नॉट, इफ अगर वहाँ पे C मौजूद ना हो तो रिजल्ट नॉट C आएगा. देन लिस्ट गेट अल्फ़ाबेट, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स को उठा के ले आएगा. देन void validate, and these are the some other functions which are part of org.biojava.bio.alphabet class. So basically अब ये क्या चीज़ है, org ऑर्गेनाइजेशन, बायोजावा हमारी जो पूरी की पूरी लाइब्रेरी है उसमें स्पेसिफिकली बायो से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और फिर अल्फ़ाबेट्स की इन्फॉर्मेशन. ये इन्फॉर्मेशन इस वाली लाइन की मदद से हम इसको लिखते हैं और नीचे वाली इन्फॉर्मेशन अटेन कर सकते हैं. देन वी हैव डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेट्स फॉर आवर सीक्वेंसेस. जैसे DNA की अगर हम बात करें तो उसके जो डिफ़ॉल्ट सीक्वेंसेस हैं विच आर ACGT, फॉर RNA इट इज़ ACGU एंड सो ऑन. Here I have given an example of reading the information from DNA, RNA and protein structure, कि हमने कैसे उनके अल्फ़ाबेट्स को हमने रीड करना है. अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँ क्लास को, तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रही है कि एट द फर्स्ट लाइन वी आर राइटिंग दिस वर्ड इम्पोर्ट. इम्पोर्ट से मुराद ये होता है कि अब जो हमारे पास आगे हम लाइब्रेरी देंगे विच इज़ बेसिकली दिस
बायो जावा लाइब्रेरी, इसको अपने पास इंपोर्ट कर लो, अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए। नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम दिस बायो जावा क्लास वी आर टेकिंग दिस बायो डॉट सिंबल लाइब्रेरी। सिंबल वो लाइब्रेरी है जिसमें सिंबल से रेलिवेंट सारे के सारे फंक्शंस, वेरिएबल्स, पैरामीटर्स डिफाइंड है। देन वी हैव इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक। ये हमारी वो लाइब्रेरी है जो डिफरेंट यूटिलिटीज जो जावा के प्रोग्राम में चाहिए होती हैं उनको यूज़ करने के लिए। एंड फाइनली वी हैव बायो डॉट सीक्वेंस लाइब्रेरी जो सीक्वेंसेस की इन्फॉर्मेशन को उठा के लाती है। अब यहाँ पे हम पब्लिक क्लास अल्फ़ाबेट एग्जाम्पल का कीवर्ड आया। ये इससे मुराद ये है कि हमारी क्लास का जो नाम है वो अल्फ़ाबेट एग्जाम्पल है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्टार्टिंग का हमारा मेथड है जहाँ से हमारी कंपाइलेशन स्टार्ट होगी। अब हमने यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट डिफाइन की हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। फिर हम क्या करें, इन तीनों अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ को हम गेट करना चाहते हैं। फॉर दैट पर्पस दिस स्टेटमेंट डीएनए इज इक्वल टू अल्फ़ाबेट मैनेजर डॉट अल्फ़ाबेट फॉर नेम और डीएनए। अब ये क्या करेगा कि डीएनए के जितने भी अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं हमारे पास बायो लाइब्रेरी के अंदर, बायो डॉट सिंबल लाइब्रेरी के अंदर, तो उन सब को गेट करके ले आएगा और स्क्रीन पे शो करने के लिए अपने पास सेव कर लेगा डीएनए वेरिएबल में। सिमिलरली दिस आरएनए वेरिएबल will save all the information from RNA library in itself. Similarly, moving on, we have this prot variable. ये प्रोटीन के जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सेव कर लेगा। और उसके बाद हमारे पास टर्मिनेशन सिंबल्स के वाले जो प्रोटीन के सिंबल्स हैं जिनके अंदर टर्मिनेशन की भी सिंबल है वो प्रोटीन के इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएंगे। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू गेट दोज सेम अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम द टूल्स क्लासेस। कि अब हमारे पास जो डीएनए की टूल्स की क्लासेस हैं उनसे अगर हम इन्फॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, बेसिकली दिस डीएनए टूल्स आर पार्ट ऑफ बायो डॉट सीक्वेंस पैकेज। अगर वहाँ से हम लेना चाहते हैं तो हम सिंपल वही इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं विच इज़ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। एंड व्हाट वी आर डूइंग, दिस डीएनए टूल्स इज़ अ क्लास और उसका ये मेथड कॉल कर रहे हैं गेट डीएनए का, जो हमारे डीएनए के सारे अल्फ़ाबेट्स को लेकर आ जाएगा। सिमिलरली ये प्रोटीन टूल्स के लिए आएगा और जो ये दिस वन फॉर आरएनए टूल। और ये वाला जो हमारे पास टर्मिनल नोड्स थी, यानी कि वो सिंबल्स जिनमें टर्मिनल नोड्स हैं उनको गेट करके ले आएगा। अब यहाँ पे ऑल्दो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गेट तो हो गई। इफ़ वी वांट टू प्रिंट दिस इन्फॉर्मेशन, अगर हम स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं तो वी हैव टू ऐड वन मोर लाइन हेयर विच वुड बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और उसमें हम नाम दे देंगे डीएनए का। तो डीएनए के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। सिमिलरली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आरएनए, आरएनए के अल्फ़ाबेट्स प्रिंट हो जाएंगे। सिमिलरली वी कैन प्रिंट अल्फ़ाबेट्स ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस ऑल्सो।